بہتر زندگی, اچھی نوکری اور یورپ پہنچنے کا خواب ہر سال ہزاروں پاکستانیوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے, لیکن ان خوابوں کی تلاش میں بہت سے نوجوان انسانی اسمگلرز کی جال میں پھنس جاتے ہیں. یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کا اکثر اختتام منزل پر نہیں ہوتا بلکہ موت, تشدد اور جیل کی سلاخوں پر ہوتا ہے. آخر بلوچستان اس غیر قانونی ہجرت کے حوالے سے اتنا اہم کیوں ہے, آئیے جانتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں کی بڑی تعداد پنجاب اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہے. ان کے یورپ پہنچنے کے کچھ راستے بلوچستان سے ہو کر گزرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ راہداری بن چکا ہے. ایز فار ایز بلوچستان از کنسرنڈ, یہ پاکستان کا آلموسٹ 44% ایریا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی جو اس کا یعنی 44% ایریا بلوچستان ہے. اب بلوچستان کا جو اسٹریٹجک جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایران کے ساتھ بارڈر ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے اس کا کوسٹل ایریا بہت بڑا ہے. اب یہ تین ایریاز جو ہے وہ بیسیکلی جو ہیومن سمگلرز ہیں اور ہیومن ٹرافکرز ہیں ان کے لیے یہ ایک اٹریکٹیو پروونس اس لحاظ سے ہے کہ فار ایگزامپل لینڈ لاکڈ افغانستان ہے, وہاں سے سینٹرل ایشیا اور وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں افغانستان سے, پھر پاکستان سے پھر تھرو ایران جا سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان بھی کانفلکٹ زون ہے. اور ان دا سیم وے اب بلوچستان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بارڈرڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی کانفلکٹ زون ہے. اب یہاں پہ جو یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ایک تو بہت لانگ بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے, جس کا مطلب پورے بارڈر کا یعنی خیال رکھنا یا ان کو سرویلنس میں رکھنا یہ مطلب دشوار ہے. اسی طرح ریسورسز جو ایران کے لیے بھی اسی طرح سے, اور ایران جو بلوچستان کے ساتھ بارڈرڈ ہے یہ وہ ایریاز ہے جو ایران کا بھی اس طرح سے اس پہ کنٹرول نہیں ہے. وہاں پہ جو آرگنائزڈ کرائمنل ایکٹیویٹیز ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ وہاں پہ پرفارم ہو رہی ہے, اور اس کے جو ایویڈنسز ہے وہ بھی موجود ہے. ہیومن سمگلنگ ایک ایسا ایکٹیویٹی ہے جس میں آرگنائزڈ کرائمنلز انوالو ہوتے ہیں. یہ ایک ایلیسٹ ایکٹیویٹی ہے, یعنی غیر قانونی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں سارا لین دین جو ہے وہ فائنینشیل ہے. فائنانس کا بڑا اس میں ایک رول ہے, فائنانس کا انوالومنٹ ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ ایک ایریے سے دوسری ایریے کی طرف, یہ کراس بارڈر ہوتا ہے. تو کراس بارڈر جو ہے وہ بیسیکلی جو ڈیولپنگ نیشنز ہے یا انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہے وہ ڈیولپڈ نیشنز کی طرف, فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یورپ اور دوسرے ممالک کی طرف جو ہے وہ تھرو ارریگولر ویز جو مائیگریشن کے روٹس ہیں اس پہ لوگ جاتے ہیں. وہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں, آرگنائزڈ کرائمنلز جو ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں. ان کو پیسے پے کر کے وہ پیسوں کے بدلے میں ان کو ایک سورس کنٹری سے پھر ڈیسٹینیشن, اور ڈیسٹینیشن سے پھر جو ہے وہ مطلب یہ کہ سورس سے ڈیسٹینیشن تک ان کو پہنچا دیتے ہیں. جہاں پہ ان کا ایگریمنٹ اس ایریے تک اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جہاں تک ان کو پہنچا دیا جاتا ہے, تب پھر جو ہیومن سمگلر ہے اور جو پرسن سمگلڈ ہو چکا ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پھر فردر ریلیشن شپ نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. جبکہ جو ہیومن ٹرافکنگ ہے وہ ماڈرن سلیوری ہے ایک طرح سے. ہیومن ٹرافکنگ میں جو فرد جو ہیومن ٹرافکرز کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے ان کا کنٹرول اپنے آپ پہ نہیں ہوتا. وہ جو آرگنائز کرائمنلز ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ کہیں پہ کوئی اپنا ول ایکسرسائز نہیں کر سکتا. وہ جو ٹرافکرز ہوتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ان کو مطلب جو بھی میتھڈولوجیز ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ ان کو لے جانا لانا, یہ سارے ہیومن ٹرافکرز کرتے ہیں. ہیومن ٹرافکنگ جو ہے وہ ہیومن سمگلنگ کی طرح نہیں جو کراس بارڈر ہو سکتا. ہیومن ٹرافکنگ کراس بارڈر بھی ہو سکتا ہے اور ود ان بارڈر بھی ہو سکتا ہے. اس مقصد کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے نکلنے والے افراد پہلے بلوچستان پہنچتے ہیں. کوئٹہ ان کے سفر کا اہم پڑاؤ ہوتا ہے, جہاں سے انہیں ایران اور خفیہ راستوں کے ذریعے یورپ پہنچایا جاتا ہے. تارکین وطن کو مختلف گروپس میں تقسیم کر کے نوشکی, نکنڈی, تافتان, یکمچ, ماشکیل, پنجگور اور تربت کے دشوار گزار زمینی راستوں کے ذریعے
ईरान दाखिल कराया जाता है, जबकि कराची, ऊथल और गवादर के साहिली रास्ते भी इस्तेमाल होते हैं, जहां से छोटी कश्तियों के जरिए ईरान या दीगर मकामात तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। माशकेल है, माशकेल का रास्ता, और इसी तरह फिर ईरान की तरफ ये मूव करते हैं। इन सेम में तो जो तुर्बत है, मंद है, तो इनके ये रास्ते जो लोग बाकायदा यूज करते हैं ह्यूमन स्मगलिंग के लिए भी। ये रास्ते आम सड़कें नहीं, बल्कि सहराओं, पहाड़ों और सुनसान सरहदी इलाकों से गुजरते हैं। पानी, खुराक और दीगर तिब्बी सहूलियात से महरूम इस सफर में हर कदम जानलेवा साबित होता है। रास्ते में दुश्वारियाँ तो बेशुमार हैं। सबसे पहले ये जिस स्टेटस के साथ मूव कर रहे होते हैं, यानी वो मूवमेंट जो उनका होता है वो लीगल नहीं होता, वो एक इर्रेगुलर होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसमें शामिल नहीं होता। अब यहाँ से जब वो ईरान को मूव करते हैं तो ईरान में इनके जो ह्यूमन राइट्स है वो तो मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स तब होते हैं जब उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, या फिर गवर्नमेंट के किसी भी स्टेटिस्टिक्स में वो आ रहे होते हैं, या गवर्नमेंट के किसी भी राडार में वो लोग आ रहे होते हैं, तब उनके जो ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेक्ट होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो विद इलीगल या इरेगुलर जो डॉक्यूमेंट्स है वो अगर मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उनके कोई राइट्स वहाँ पे नहीं होते। तो जब राइट्स आपके जो है वो पामाल होते हैं या राइट्स आपके जो है नहीं होते, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी आपका जो पानी से लेके रोटी तक, रोटी से लेके शेल्टर तक, शेल्टर से लेके हेल्थ तक, हेल्थ से लेके एजुकेशन तक, इसी तरह लाइफ की सिक्योरिटी है, यानी ज़िंदगी की हिफाजत है, तो वो सारी चीज़ें जो फिर अपसेंट हो जाती हैं। माहिरीन कहते हैं कि इंसानी स्मगलिंग सिर्फ गैर कानूनी सफ़र नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी कारोबार है, जिसमें मुतादिद ग्रोह और नेटवर्क्स एक साथ काम करते हैं। इंसानी स्मगलर्स बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते हैं, मगर हकीकत में बहुत से तारकीन वतन रास्ते में भूख, प्यास, बीमारी, कश्ती हादसात और इस्तेहसाल का शिकार हो जाते हैं। अगर आप देख ले जो इस इलिसिट एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व लोग हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग जो है, ये एक बंदा नहीं है, न 2 बंदे हैं, न 3 बंदे हैं, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, एक मुनज़्ज़म तरीके से होता है। इसमें एक ग्रुप शामिल नहीं होता, 2 ग्रुप्स शामिल नहीं होते, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो है विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। कवानीन मौजूद हैं, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक कमजोर तफ्तीश, महदूद वसाइल और नाकिस प्रोसिक्यूशन इस जुर्म में बड़ी रुकावटें हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सीरियस नेचर का क्राइम है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में जो मैकेनिज़्म है प्रोसिक्यूशन का, वो इंतहाई गंभीर और कमज़ोर मैकेनिज़्म है, जो सपोर्ट नहीं करता है सिस्टम को, और वो जो कल्प्रिट्स है वो बहुत कम पकड़े जाते हैं, या जो पकड़े जाते हैं कि वो प्रोसिक्यूशंस में डिफिशेंसी की वजह से, प्रोसिक्यूशंस जो है ना वो मटेरियल को स्ट्रीमलाइन ना करने की वजह से जो है ना वो अक्यूज़ जो है वो बरी हो जाता है। ये चूँकि मेन मैंडेट जो है ये FIA का है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है, ये उसका मैंडेट बनता है कि वो इस पे जो मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको कारामद लाएं, और इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अगर ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कम ज़रूर किया जा सकता है। बलूचिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में कई ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जहां तारिकीन वतन रेगिस्तानों में भटक कर जान की बाजी हार चुके हैं। बाज़ अफराद शदीद गर्मी, पानी की कमी और थकन के बायस रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, जबकि बाज़ अफराद कश्तियों के हादसात का शिकार हो जाते हैं और कुछ दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देख ले जो एजुकेशन की तरफ जितने भी लोग जा रहे हैं, अब एजुकेशन भी उस तरह से लोगों को जो है रिटर्न्स नहीं देते, ताकि थ्रू एजुकेशन लोग जो है वो स्किलफुल हो के फिर अपने घर को या फिर अपना फाइनेंस को चला सके। अब ये इसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स है जो उनको मोटिवेट करते हैं, या उसका जो एक फैक्टर बन के जो है उनको इस पे तैयार करते हैं कि वो ह्यूमन स्मगलिंग के रास्ते से या ह्यूमन के ट्रैफिकिंग में चले जाते हैं, इन्हीं चैनल्स को यूज़ करते हुए, ताकि वो अपना जो है फाइनेंस बना सके। यानी वो जब यूथ के दरमियान जब डिस्कशन होती है, जाहिर सी बात है कि हर इंसान के अंदर जो है रियल के साथ साथ आइडियल भी मौजूद होता है। अब आइडियली हर नौजवान जो है वो एक आइडियल लाइफ गुजारना चाहता है। अब ये इस आइडियलिज़म की वजह से लोग जो है वो
यानी इनकी जो आइडियलिज़म है वो उसको लीड कर रहे होते हैं कि आप अगर पाकिस्तान में नहीं कमा सकते, या पाकिस्तान में आपको अच्छे पैसे नहीं मिलते, या पाकिस्तान में आपको अच्छी मयार ज़िंदगी आपको नहीं मिलती, या पाकिस्तान में आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता, या पाकिस्तान में आपको शेल्टर अच्छा नहीं मिल सकता, या पाकिस्तान में आपको हेल्थ, एजुकेशन, ओवरऑल जो 28 ह्यूमन राइट्स के इंडिकेटर्स है, तो जब वो लोग सोचते हैं कि हमें नहीं मिल सकते, फिर वो इन्हीं रास्तों को वो फिर रिस्क लेते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि आप पाकिस्तान में एक रिस्की लाइफ गुजारने के बजाय फिर हम क्यों कर जो है एक इससे थोड़ा सा आगे जाके एक ऐसा स्टेप हम ना लें कि हम फिर बैरूनी ममालिक की तरफ मूव करके रास्ते में ख़तरात ज़रूर होंगे, पर यह है कि अगर डेस्टिनेशन तक हम पहुँच जाते हैं तो फिर ये जो मयार ज़िंदगी है वो इंटायरली चेंज होगा। माहिरीन के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग के फ़रोग़ की बड़ी वजूहात में गुर्बत, बेरोज़गारी, माशी अदम इस्तेकाम और बैरून मुल्क बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब शामिल हैं, जबकि कानूनी हिजरत के मौक़े महदूद होते हैं तो नौजवान आसान रास्ते की तलाश में गैर कानूनी नेटवर्क्स का रुख करते हैं। उनका कहना है कि गैर कानूनी रास्तों से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद मंजिल तक पहुँच भी जाएं तो उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। दस्तावेज़ात न होने की वजह से वो बुनियादी हुकूक, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और मुलाज़मत की सहूलियात से महरूम रहते हैं और अक्सर सस्ती मजदूरी या इस्तेहसाल का शिकार बन जाते हैं। हुकाम का कहना है कि सरहदी निगरानी को मजीद सख्त किया जा रहा है और साथ में नौजवानों को रोजगार और बैरून मुल्क भिजवाने के मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर माशकेल में डेड बॉडीज़ मिली। जब उनको ट्रेस किया गया तो पता चला कि एक एजेंट था जो इनको ये झांसा लेके आया था कि जी मैं आपको यूरोप लेके जाऊंगा, और उनको वो वाशुक और पंजगूर के पहाड़ों और तुर्बत के पहाड़ों में से होता हुआ लेके जा रहा था, और मौसम की एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके, वहीं पे डिहाइड्रेट हुए और वहीं पे बेचारे पड़े रहे और फिर डेथ हो गई। बहुत अरसे बाद उनकी बॉडीज़ रिकवर हुई। उसके बाद से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर बड़ा मैसिव काम होना शुरू हो गया है। सूबे के अंदर भी इसके सेल्स बन चुके हैं, और वैसे तो क्योंकि ये वफाक का काम है तो फेडरल गवर्नमेंट अपना भी सेल बना रही है, नई लॉ मेकिंग भी इसके ऊपर कर रही है, FIA को भी एम्पावर कर रही है और सूबाई हुकूमतों से इसके ऊपर मदद भी दे रहे हैं। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वो एजेंट्स और ये जो टाउट्स हैं जो ये काम करते हैं, लोगों को बेरा रवी की तरफ लेके जाते हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके ऑफिस, उनको चेक किया जा रहा है, और अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनको रजिस्टर किया जा रहा है जो लीगली बाहर लेके जाते हैं। इन द मीन टाइम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये भी समझती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हमारे जवान हैं, वो उनकी एस्पिरेशंस हैं, वो जाना चाहते हैं, तो एक लीगल प्रोग्राम बी टेफ्टा के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। उस पर MD बी टेफ्टा उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि 15,000 के करीब जो जवान हैं उनको हम सऊदी अरब, UAE और वहाँ पर रजिस्टर्ड एमिग्रेशन के लाइसेंसेस लेके उनको वहाँ पर जॉब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर जाएँ, और उनको सॉफ्ट लोन्स भी दिए जा रहे हैं, और कुछ आधा लोन उनका हुकूमत पे कर रही है। बलूचिस्तान से गुजरने वाला ये रास्ता सिर्फ हिजरत का रास्ता नहीं, बल्कि हजारों अधूरे ख्वाबों की कहानी भी है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी स्मगलर्स को रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि रोजगार, आगाही और हिजरत के महफूज रास्ते भी फराहम करना है।